Hello students, welcome back to my lectures of class 10 physics. We are studying our chapter electricity. Now here in this video, we will see an important topic of this class 10 which is generally asked in the exam, and that topic is the Ohm's law. Okay, now first of all, this Ohm's law was given by George Simon Ohm. Now here we will see first of all that what is the statement of this Ohm's law or what this Ohm's law says. ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या कि जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसके लिए जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. मींस द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, द प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, देयर मस्ट नॉट बी एनी ह्यूमिडिटी इन द सिस्टम. मतलब यहाँ पर जो भी फिजिकल कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर के जो भी पैरामीटर्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए. ओके, सो अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस व्हाटएवर द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, that current is directly proportional to the potential difference applied across its ends. मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर जब भी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी तो उसके दोनों एंड पर जितना भी हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसकी वजह से वहां पर कुछ करंट फ्लो होगा. तो वहां पर जो भी करंट है दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference across its ends. Means according to this statement, I can write this I is directly proportional to V. Means here the strength of current is directly proportional to the potential difference. Okay, now here we have to understand one thing, that this voltage of the potential difference, that is the cause, and this current, that is the effect. इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कॉज होगा उसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा. मतलब जब भी हम एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब हमारे पास उस कंडक्टर के अंदर कुछ करंट फ्लो होगा. सो विद द कॉज वी हैव इफेक्ट. इफेक्ट के साथ कभी भी कॉज नहीं होता है, हमेशा कॉज की वजह से इफेक्ट होता है. सो हियर फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है उसकी वजह से हमारे पास कुछ करंट फ्लो होगा. सो बिकॉज ऑफ द कॉज वी हैव सम इफेक्ट. Okay, now here we have this proportional sign, so I can remove this proportional sign and I can write one constant, that is R. So V is equals to RI, where R is proportionality constant, and this proportionality constant, that is called as the resistance. And this resistance we have seen, that's the property, and that is produced by the device that is called as the resistor. Okay, so here this is the mathematical statement of the Ohm's law, that is V is equals to RI, where V is the potential difference, R is the resistance, and I is the current flowing in that conductor. So now from the mathematical statement of this Ohm's law we have got another important term, that is the resistance R. So first of all, what this resistance is, we have already studied that this resistance, that's the property of the material which opposes or that restricts the flow of charges or the current, जो कि करंट या चार्जेस को उसके अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करेगा. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दी रेजिस्टेंस, एंड दैट इज अचीव्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज दी रेजिस्टर. सो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट obstruct the flow of charges or current through it. करंट बोले या फिर चार्जेस दोनों सेम है, because when there is the flow of charge we have the current. Okay, and this resistance that depends upon the three parameters. The first one is the size, मतलब कंडक्टर का साइज क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसका मटेरियल क्या है, क्या वो कॉपर से बना हुआ है, क्या वो नाइक्रोम से बना हुआ है, क्या वो एल्यूमिनियम से बना है. सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल हमारे पास रेजिस्टेंस हो सकता है. एंड थर्ड इज दी टेम्परेचर. टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, वी हैव seen that the statement of the Ohm's law, that is at constant physical conditions. मतलब जो physical conditions like temperature, that must be constant, because of that temperature उसका resistance क्या हो सकता है, change हो सकता है, इसलिए हमको physical conditions constant रखनी पड़ेगी. So here these are the three parameters on which this resistance depends. Okay, and the dependency of this resistance we will see in some another video. Okay, now here the next point, we have seen that the mathematical statement of Ohm's law, that is V is equals to IR. यहाँ से भी हम resistance को define कर सकते हैं. कैसे? We have this R is equals to V by I. So it is
simply the ratio of the potential difference applied across the ends to the current flowing through that कंडक्टर, दैट इज दी रेजिस्टेंस। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कितना करंट उसके अंदर फ्लो होगा, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज दी रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं एज इस प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हम उसके फॉर्मूले से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो ओम्स लॉ है, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, एंड this unit is based on his name, that is the ohm, and that is represented by this symbol. Now अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी यूनिट है तो हमको इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, एंड वी ऑल्सो हैव इट्स फॉर्मूला, तो हम इसको इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर हम V को भी 1 रख दें और करंट को भी 1 रख दें, देन विल गेट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ohm. So here how to define this 1 ohm? It is the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is applied across its ends. मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का कब होगा, जब उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कब फ्लो होगा, जब हम उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। देन व्हाट एवर द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 1 ohm. So these are the some important points based on the Ohm's law. Now here we will see some important graph that is based on this Ohm's law. This statement of this Ohm's law, that is V is equals to IR, यहाँ से हमारे पास दो ग्राफ निकल के आते हैं, that is VI and IV ग्राफ। तो यहाँ पर दोनों ग्राफ हम देखेंगे। So first we will see this VI graph. Now what this VI graph is? VI ग्राफ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि y एक्सिस पर जो हम पैरामीटर लेंगे, that will be voltage, that is the potential difference across the ends of the conductor, and on the x axis we will consider the current I, which is measured in ampere, and here it is measured in volt. Okay, now how this VI graph for this Ohm's law will be? Here we have the statement V is equals to IR. अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि V is directly proportional to I, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल कर आता है। मतलब यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, या फिर आप यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर देख सकते हो। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का अप्लाई करते हो, तब यहाँ पर जो करंट है वो भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 एम्पियर। अगर हमारे पास यहाँ पर 4 वोल्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, तब करंट भी कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। दैट्स फॉर एन एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारे पास दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तब इस तरह से कुछ हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। ओके, नाउ यू माइट हैव स्टडीड द टर्म कॉल्ड एज द स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप क्या होता है, what is this slope? This slope is the tan of angle made with the x axis. यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रही होगी विद द x axis। तो यहाँ पर ये जो tan थीटा है, this tan theta is called as the slope. You might have studied this in your mathematics syllabus, that is in the trigonometry. यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। Now this tan theta, ये tan theta क्या होता है? This tan theta is the ratio of perpendicular and the base. अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, okay, so here this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. तो मतलब यहाँ पर tan theta क्या होता है, that is the ratio of perpendicular and the base. Okay, अब यहाँ पर perpendicular क्या है, when you will see here on this line we have voltage, मतलब यहाँ पर perpendicular क्या हो जाएगा, voltage, and on the base we have करंट ऑन दी एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पर बेस कितना है, करंट है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस दैट इज आई, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। नाउ हियर यू कैन सी हियर दिस V बाय I। हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल्स टू आर आई। यहाँ से अगर मैं निकालूं V बाय I दैट इज इक्वल्स टू आर, मतलब यहाँ पर V बाय I दैट इज इक्वल्स टू आर, मतलब यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू V बाय I इज इक्वल्स टू आर, एंड दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली जो स्लोप है, दैट स्लोप इज डायरेक्टली द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी हमारे पास VI कर्व गिवन है, तो वहां से आप अगर स्लोप कैलकुलेट कर लोगे, तो डायरेक्टली स्लोप से जो भी वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ VI ग्राफ। क्या इंपॉर्टेंस है कि इस ग्राफ का डायरेक्टली जो स्लोप है, दैट इज द tan ऑफ एंगल थीटा विद द x एक्सिस, दैट विल गिव यू द डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर।
Now here, after looking at this VI graph, we will see this IV graph. Now I will make some changes here only, ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ पर VI और IV ग्राफ में डिफरेंस क्या है. Okay, now this IV graph का मतलब क्या है कि यहाँ पर on this y axis I will have the current which is measured in ampere, and here on the x axis I will have the potential difference that is measured in volt. Okay, so VI का मतलब क्या था, इस एक्सिस पर वोल्टेज था, यहाँ पर करंट, बट IV इस एक्सिस पर क्या हो गया, करंट, एंड इस एक्सिस पर क्या हो गया, वोल्टेज. अब यहाँ पर ये चीज सेम है, V प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पर स्लोप tan थीटा होगा. अब यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू V हो या फिर V प्रोपोर्शनल टू I हो, इन बोथ द केसेस यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन. ओके, नाउ हियर tan थीटा का फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम देखें तो इस एक्सिस पर हमारे पास क्या है, करंट, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, करंट I, एंड दिस बेस. अब यहाँ पर बेस वी आर मेजरिंग दी वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V. ओके, उस केस में क्या था, जब हमारे पास VI ग्राफ था तो उसके केस में क्या था, यहाँ पर V by I, यहाँ पर क्या हो गया, I by V. नाउ हियर दिस V इज इक्वल्स टू RI. यहाँ पर अगर मुझे लिखना है दिस I by V, देन दैट इज इक्वल्स टू 1 by R. इन द सेम वे दिस tan थीटा, यहाँ पर क्या है, I by V, सो हियर I by V, एंड दिस I by V दैट इज इक्वल्स टू 1 by R. मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी इज इक्वल्स टू 1 बाय R. मतलब जब भी आपके पास IV ग्राफ है और वहां पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द इनवर्स ऑफ दैट स्लोप विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस R इज इक्वल्स टू 1 बाय स्लोप. So this is what the main difference between the VI curve and the IV curve is. That is, in case of VI curve, directly आप वहाँ पर slope calculate कर लोगे and you will get the resistance. But in case of IV graph, क्या होगा, आपको वहाँ पर slope calculate करना पड़ेगा और उसका inverse निकालना पड़ेगा, then you will get the value of the resistance. So this is what the difference between VI and IV graph. Now here we will see the verification of Ohm's law. अब यहाँ पर Ohm's law का verification किसके थ्रू होगा, by using a circuit डायग्राम. और सर्किट डायग्राम के अंदर हमारे पास एक कंडक्टर होगा या फिर एक रेजिस्टर होगा जिसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दी करंट. हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करेंगे और यहाँ पर VI या फिर IV कर्व बना लेंगे, और वहां से अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ओम्स लॉ इज वेरीफाइड. तो उसके लिए सबसे पहले हमको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा. नाउ व्हाट दिस सर्किट डायग्राम इज, circuit we have already seen that's the combination of a number of components which are connected through a wire. अब यहाँ पर भी हमारे पास Ohm's law के अंदर अलग अलग components होंगे. Now the first one is the battery. Now this is the symbol of the battery. This is plus side, the electrode which is larger in size, और जो electrode जिसकी size smaller है that will be negative. Okay, now here I will use a key. जब भी हमें इसके अंदर करंट फ्लो करवाना हो, यहाँ पर हम की को इंसर्ट कर देंगे और जब भी इसको ऑफ करना है यहाँ से की को बाहर निकाल देंगे. ओके, राइट नाउ वी कैन एज्यूम दैट दिस इज ओपन की एंड दिस इज बैटरी. ओके, नाउ हियर अलोंग विद द बैटरी वी हैव टू कनेक्ट एन एमीटर. नाउ दिस एमीटर वी हैव अ सर्कल एंड इन दैट सर्कल आई विल राइट ए. यहाँ पर क्या होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा बिकॉज करंट विल मूव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड हियर वी हैव द नेगेटिव साइड. ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट द करंट फ्रॉम दिस बैटरी मूव फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड एंड्स एट नेगेटिव साइड, और यू कैन से द करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड. अब यहाँ पर जो एमीटर है इसको हमने इसके साथ में कनेक्ट किया है. ओके, नाउ हियर वी हैव टू इवन कनेक्ट अ रेजिस्टेंस विद दिस सर्किट. So here this is the resistor whose property is the resistance, और इसकी वैल्यू हम R assume कर लेते हैं. Okay, now along with this resistance हमें एक रियोस्टेट कनेक्ट करना पड़ेगा. Now what this रियोस्टेट is, इस रियोस्टेट की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो सकती है. बिकॉज हमें क्या करना है, जब हमें ओम्स लॉ का वेरीफाई करना है तो हमें करंट की अलग अलग वैल्यू चाहिए. तो करंट की अलग अलग वैल्यू कब आएगी, इस रियोस्टेट से. नाउ हियर दिस रियोस्टेट व्हाट इट डू, इट चेंजेस द करंट.
ओके अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है अभी तक जो कि वोल्टेज को मेजर कर सके, तो हमें यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। Here it is positive side and here it is negative. So here this is the complete circuit for the verification of Ohm's law, where we have a battery, a key, ammeter, voltmeter, a resistor and a rheostat. Current यहाँ से flow होगा and this current will move towards the negative terminal of the battery. And here we have one thing, that this ammeter that is always connected in the series, मतलब सर्किट के साथ में कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, that is called as the series connection. And here this voltmeter that is always connected in the parallel across 2 points where we have to measure the potential difference. अब यहाँ पर एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना ये क्यों होता है, that we will see in the next video. Okay, now for the verification of Ohm's law, what you have to do, आपको एक टेबल बनानी है, इसके अंदर आपके पास हो जाएगा सीरियल नंबर, then you have voltage, then you have current and then you have V by I, because this V by I that is equals to R. Okay, now what you have to do, you have to change this rheostat. जो rheostat की पोजीशन है पहले आपको कहां पर 0 पर लेकर आनी है और उसके बाद यहाँ पर 0 से आप उसको आगे की तरफ मूव करोगे। जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट तक पहुंच जानी चाहिए। मतलब अगर वोल्टमीटर के अंदर हमारे पास रीडिंग यहाँ पर होती है सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 0 से 1 के बीच में अगर हमारे पास 10 डिविजन्स हों तो क्या करना, सबसे पहले हमको कि यहाँ पर ये जो पॉइंटर है सबसे पहले इसको एक ऐसे फिक्स पॉइंट पर लेके आना है जिसकी वैल्यू हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसको यहाँ पर लेकर आओगे 0.1 पर, तो यहाँ पर आपको रीडिंग लिखनी है 0.1 एंड नाउ विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ दिस रियोस्टेट यू हैव टू सी दिस एमीटर। एमीटर के अंदर यहाँ पर रीडिंग कितनी आती है, यहाँ पर भी आपको रीडिंग नोट डाउन करनी है एंड देन यू हैव टू फाइंड देयर रेशियो दैट इज 0.1 by 0.1. So whatever the value you will get that is the 1. Again now you have to move this rheostat. फिर आपको इस पॉइंटर को कहां पर लेकर आना है, you have to make it at 0.2 and then you have to write the reading over here that is 0.2. Now without changing the position of this rheostat आपको यहाँ पर एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है। ये रीडिंग कुछ इस तरह से आएगी 0.2 and here again the ratio 0.2 by 0.2 that is equals to 1. तो यहाँ पर आपको सभी रीडिंग्स को मेजर करना है and then at the last you have to find the average, the resistance that is equals to R1 plus R2 up to Rn, जितनी भी आप रीडिंग लेते हो divided by the number of values you will get the resistance. और रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालने के बाद क्या करना है आपको V और I यहाँ पर रीडिंग लेनी है और आपको इस तरह से एक ग्राफ बनाना है जहाँ की हमारे पास V होगा on the y axis and I will be on the x axis, and if you will get a straight line for this reading then you can say that the Ohm's law is verified, क्योंकि वहां पर उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एंड देन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ से आप डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ओके, देन वॉट एवर दिस वैल्यू विल बी यू कैन चेक कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इस रेजिस्टेंस की जो एवरेज वैल्यू उसके बराबर होगी। दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हियर दिस इज अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law. Here in this video we have studied what Ohm's law is, what is resistance, what is VI and IV graph and what is the difference between them, and also the verification of Ohm's law using its circuit diagram.